Hello, dear students. Welcome in this 25th lecture of management. Hope you will enjoy the lecture. Before I start this lecture, I would like to recapitulate whatsoever I have discussed during the previous unit. So, in the previous units, that is in unit 4, uh, we have discussed and learned about personal management, staffing, personal training and development, leadership and motivation, safety management, and finally we discuss about Factory Act, Employee State Insurance Act, Workmen Compensation Act, and Industrial Dispute Act under Human Resource Management. Now I am going to start Unit 5, that is Financial Management. So in this lecture of financial management, we shall discuss about introduction, meaning, definitions, objectives, and functions of financial management. So let us start with learning outcome of this session. So after this session, you students will be able to explain the term uh, financial management, describe the objectives of financial management, explain the functions of financial management, define the financial management, and define the business finance. So let us start with the financial management. Before we talk about financial management, it is important to have a definition of what it is. So let us look at the three root of financial management. First, finance, second, management, and third, business finance. What is finance? So finance is the word used to describe the money resources अवेलेबल टू गवर्नमेंट फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स, यानी फाइनेंस जो एक शब्द है जो उस मॉनेटरी संसाधनों को बताता है जो फर्म के पास है, गवर्नमेंट के पास है और इंडिविजुअल के पास है. एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल. और मैनेजमेंट क्या है, जैसा कि हम लोग कई बार शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि यह एक कला है जो व्यक्ति को एक साथ लेकर किसी काम को कंप्लीट करने का. एंड बिजनेस फाइनेंस, so the money required for carrying out business activities is called business finance. जो भी बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए मनी की जरूरत होती है, पैसा की जरूरत होता है, उसी को हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं. तो ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायर्ड फ्रॉम फाइनेंस, एंड फाइनेंस इज needed to establish a business, to run it, to modernize it, to expand and डाइवर्सिफाई इट. यानी लगभग हर बिजनेस में को फाइनेंस की ज़रूरत होती है, और फाइनेंस की ज़रूरत इसलिए होती है कि चाहे वो बिजनेस को एस्टेब्लिश करना हो, इसको रन करना हो, इसका मॉडर्नाइजेशन करना हो, या इसका एक विस्तार करना हो ना, तो इसलिए फाइनेंस की सबके लिए ज़रूरत होता है. अब हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. So, a business organization seek to achieve their objective by obtaining funds from various sources and then investing them in different types of assets such as plant, buildings, machinery, व्हीकल्स एक्सेट्रा. कहता है कि एक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका उद्देश्य होता है कि डिफरेंट स्रोत से फाइनेंस को इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के बाद ना उसको जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का के जो है मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सेक्शन है वो डिफरेंट स्रोतों से फाइनेंस को इकट्ठा करता है. फिर उनको डिफरेंट टाइप्स के एसेट्स में, चाहे वो प्लांट हुआ, बिल्डिंग है, मशीनरी, इनके परचेज में उसको इन्वेस्ट करता है. एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग फाइनेंस थ्रू साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग. For making right decision, financial management needs to understand financial environment within which these decisions operates. और जो राइट सही डिसीजन लेने के लिए जो वित्तीय प्रबंधक मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसको ज़रूरत होती है कि वो वित्तीय वातावरण क्या है, फाइनेंशियल इन्वायरमेंट क्या है, उसको समझे, तभी जाकर वो सही डिसीजन ले पाएगा इसको ऑपरेट कराने के लिए. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द operational activities of business that is responsible for obtaining and effectively utilizing the funds necessary for efficient operations. यानी जो वित्तीय प्रबंधन
है, वह एक व्यवसाय की परिचालन गतिविधियों को बताता है। क्या बताता है? ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को बताता है, जो उसके कुशल संचालन के लिए आवश्यक फंड को प्राप्त करने और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार है। नहीं ना बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग फंड्स नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन, यानी कुशल उपयोग के लिए। अब जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद 3 की एक्टिविटीज, नेमली फर्स्ट है एंटीसिपेटिंग फाइनेंशियल नीड। पहले जो है कि वित्तीय ज़रूरतों की आशंका, उसकी प्रत्याशा, इसलिए है इसका ज़रूरत। सेकंड है एक्वायरिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वित्तीय संसाधनों का ग्रहण करना, उसको प्राप्त करना। और थर्ड है अलोकेटिंग फंड्स इन बिजनेस। तो ये की एक्टिविटीज है जो कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करते हैं। पहले तो प्रत्याशा देखते हैं, उसका ज़रूरत देखते हैं कि कहाँ से मिल सकता है ज़रूरतों के अनुसार, फिर उस संसाधनों से हम उसको प्राप्त करते हैं, एक्वायर करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग व्यवसाय में धन को आवंटित करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बिज़नेस में वो जो पैसा हमने इकट्ठा किया, उसको लगाते हैं एलोकेटिंग द फंड्स। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग and controlling the financial activities such as procurement and utilization of funds of enterprise. It means applying general management principles to financial resources of द एंटरप्राइज। यानी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसका अर्थ है कि मतलब उसका है कि एंटरप्राइज का जो फंड की खरीद, उसका उपयोग, जैसे कि वित्तीय गतिविधियों को योजना बनाना, व्यवस्थित करना, उसका निर्देशन और नियंत्रण करने, ये सारी चीज़ें। और कहता है कि इट मीन्स अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल, यानी इसका मतलब है कि जो एंटरप्राइज है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज करने के लिए जो समान मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, उसको लागू करना, है ना? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब देयर आर वेरियस डेफिनेशंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट हियर आई हैव गिवन सम डेफिनेशन। तो फर्स्ट, खान एंड जैन का डेफिनेशन है। ये कहते हैं कि फाइनेंस इज आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। फाइनेंस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इनके अनुसार ये एक विज्ञान और कला है मनी को मैनेज करने के लिए। ठीक ना? अ, दूसरा अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट मतलब इष्टतम इसको खरीद, इसको लेना। अरे कैसे फाइनेंशियल को हम खरीदते हैं? यानी मैंने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मैंने 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए फाइनेंस लिया। फॉर ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट डिफरेंट अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड एंड कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क। विभिन्न स्रोत से जो जितने भी फाइनेंस के स्रोत हैं, उसको पहले आइडेंटिफाइड करते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। और देन हम एनालिसिस करते हैं कि यदि हम यहाँ कॉस्ट और रिस्क एनालिसिस करते हैं कि यहाँ से फाइनेंस लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, कितने टर्म में पेमेंट करना होगा, क्या इसमें रिस्क है। उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि फ्रॉम वेयर आई हैव टू टेक द फाइनेंस और द वेंचर। According to Weston and Brigham, financial management is an area of financial decision making, harmonizing individual motives and enterprise goals. ब्रिंघम के अनुसार जो है, वेस्टर्न्स और ब्रिंघम के अनुसार जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो है कि वित्तीय निर्णय लेने का एक क्षेत्र है, जो व्यक्तिगत उद्देश्यों तथा जो एंटरप्राइज का गोल है, उनके बीच में सामंजस्य प्रदान करता है, ताकि उसको लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके एंटरप्राइज के। देन हवार्ड्स एंड ऑप्टन जो हैं, उन वो कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजरियल प्रिंसिपल्स टू द एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। जो हार्वर्ड और ऑप्टन हैं, उनके अनुसार वित्तीय जो निर्णय है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो वित्तीय निर्णय लेने के क्षेत्र में जनरल मैनेजरियल प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन है, ये कहते हैं। क्योंकि मतलब जो भी हम वित्तीय निर्णय लेते हैं, जो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन
लेने में जो मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल है उसका एप्लीकेशन ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। अब अकॉर्डिंग टू जोसेफ एंड मेशेई, यानी इनके अनुसार फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर obtaining obtaining and effectively utilizing the funds necessary for efficient operations। यानी जो वित्तीय प्रबंधन है वो एक व्यवसाय की परिचालन गतिविधियों को बताता है, जैसा कि ऊपर मैंने बताया, जो उसके कुशल संचालन के लिए आवश्यक फंड को प्राप्त करने और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने की जिम्मेदारी है। यानी इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग फंड नेसेसरी फॉर efficient operation। So thus we can say that financial management is mainly concerned with effective fund management in the business। यानी किसी भी व्यवसाय में उसके फंड को किस तरीके से प्रभावपूर्ण ढंग से मैनेज करे, यही फाइनेंशियल मैनेज। एंड इट इज कंसर्न्ड विद acquisition, financing and management of assets, keeping the overall goals of business, यहाँ ऑफ रहेगा, यहाँ पे ऑफ रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, ऑफ ओके बिजनेस इन माइंड। यानी इसका मतलब है कि यह व्यवसाय के समग्र लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, वित्त पोषण और प्रबंधन से संबंधित है। मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इफेक्टिव प्रोक्यूरमेंट, effective procurement and efficient use of finance leads to proper utilization of finance by business concern। जो प्रभावपूर्ण इसका प्रोक्यूरमेंट है, खरीद है, और जो इसका उचित प्रोक्यूर है, क्या बोलते हैं, इफिशिएंट यूज है ना, कुशल यूज है, वो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन को बताता है फाइनेंस को, कि सही ढंग से यूज हो रहा है कि नहीं किसी पार्टिकुलर बिजनेस फर्म में, जो बिजनेस कंसर्न है उसमें। तो इट इज इसेंशियल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर, और हेंस द फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट डिटरमाइन द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि यह फाइनेंशियल मैनेजर का के तरफ का एक इसेंशियल पार्ट हो जाता है, इसलिए वो ऑब्जेक्टिव निर्धारित करता है कि व्हाट आई हैव टू डू फॉर दिस टू डू द इफेक्टिव मैनेजमेंट। So objective of financial management can be broadly divided into two parts. First is the profit maximization and wealth maximization. So let us start with profit maximization. A main aim of any kind of economic activity is earn profit। किसी भी प्रकार की जो आर्थिक क्रिया है उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना है। बिजनेस कंसर्न इज ऑल्सो फंक्शनिंग मेनली फॉर पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और कोई भी एक जो व्यवसायिक फर्म है वो भी इसलिए ऑपरेट करता है, फंक्शन करता है, ताकि वह प्रॉफिट कमाए। सो प्रॉफिट इज मेजरिंग टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड द बिजनेस इफिशियंसी ऑफ द एंटरप्राइज। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट है वो बिजनेस इफिशियंसी जो एंटरप्राइज है उसका जो एक मेजरिंग टेक्निक है, मापने का तकनीक है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज आल्सो द ट्रेडिशनल एंड नैरो अप्रोच विच एम एट मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज ना। यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो एक ट्रेडिशनल और संकुचित अप्रोच है, जो कि उसका उद्देश्य इतना ही है कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। जो बिजनेस उद्यम है, जो फर्म है, उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन उद्देश्य होता है। एंड फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग इंपॉर्टेंट फीचर। अब इनमें निम्न फीचर्स होते हैं। फर्स्ट है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आल्सो कॉल्ड कैश पर शेयर मैक्सिमाइजेशन। यानी प्रति शेयर कैश मैक्सिमाइजेशन को इंडिकेट करता है। इट लीड्स टू मैक्सिमाइज द बिजनेस ऑपरेशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये क्या करता है कि फिर बिजनेस ऑपरेशन को मैक्सिमाइज, जितने ऑपरेशन मैक्सिमाइजेशन होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, तो इसको ये लीड करता है। दूसरी जो है इसका फीचर वो ये है कि अल्टीमेट एम ऑफ बिजनेस कंसर्न इज अर्निंग प्रॉफिट। यदि इसका अल्टीमेट एम देखा जाए बिजनेस फर्म का, तो ये है कि प्रॉफिट कमाना। हेंस इट कंसीडर
all the possible ways to increase the प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटरप्राइजेज। तो इसलिए ये विचार करता है सारे पॉसिबल वे पर, जो संभावित इसके मार्ग है उस पे, जो कि बिजनेस इंटरप्राइज के प्रॉफिट जनरेट करने की एबिलिटी बढ़ा सके। थर्ड पॉइंट इज द प्रॉफिट इज पैरामीटर ऑफ मेजरिंग इफिशियंसी। और जो प्रॉफिट है एक इसकी इफिशियंसी, जो बिजनेस कंसर्न है, जो बिजनेस फर्म है, उसकी इफिशियंसी मापने का एक पैरामीटर है। तो शो द एंटायर पोजीशन ऑफ बिजनेस कंसर्न। तो ये एक बिजनेस कंसर्न का जो पूरी तरीके से इसका क्या पोजीशन है, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये इसको बताता है ना। यानी व्यवसायिक फर्म की जो दक्षता मापने का जो पैरामीटर है, वो बताता है, प्रॉफिट जो पैरामीटर है वो बताता है कि यह कहाँ एग्जिस्ट करता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ बिजनेस। और ये फर्म जो है बिजनेस के रिस्क को भी कम करता है। ठीक। अब फेवरेबल आर्गुमेंट्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कुछ इसके पक्ष में आर्गुमेंट्स हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, तो उसको हम देखते हैं। फर्स्ट जो आर्गुमेंट है वो ये कहता है कि वो है मेन एम इज अर्निंग प्रॉफिट। इसका इसके अनुसार इसका जो मेन प्रॉफिट एम है, उद्देश्य है, वो प्रॉफिट कमाना है। दूसरा कहता है कि प्रॉफिट इज पैरामीटर ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, या एक पैरामीटर है बिजनेस ऑपरेशन का कि किस लेवल में है, किस स्टेज में है, इसे नापा जा सकता है ना। प्रॉफिट ही बताएगा कि क्या स्टेटस है मार्केट में इस पर्टिकुलर वेंचर का। जो थर्ड पॉइंट है वो बताता है प्रॉफिट रिड्यूसेज द रिस्क ऑफ द बिजनेस कंसर्न। जो बिजनेस फर्म है उसके रिस्क को कम करता है प्रॉफिट। फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट इज मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम बहुत सारे सोर्सों के से फाइनेंस लेते हैं, लेकिन यदि प्रॉफिट खुद अपना जनरेट होता है, ये तो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है फाइनेंस का। एंड फिफ्थ इज दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी मीट्स द सोशल नीड्स ऑल्सो। यानी कि जो लाभ है वो सामाजिक ज़रूरतों को भी पूरा करता है। ठीक? तो अब इसके संदर्भ में भी कुछ अनफ़ेवरेबल आर्गुमेंट्स हैं, उसको हम देखते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन का जो अनफ़ेवरेबल आर्गुमेंट। इसमें फर्स्ट कहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लीड्स टू एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स एंड कंज्यूमर। ये क्या करता है कि जो वर्कर्स हैं, जो कंज्यूमर हैं, उसका शोषण करता है ना। इसलिए ये सही नहीं है, इनका जो ये अगेंस्ट इनका जो तर्क है इसके खिलाफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। दूसरा कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्रिएट इमोरल प्रैक्टिस। ये अनैतिकता का प्रैक्टिस करने के लिए लोगों को बाध्य करता है, क्योंकि इससे करप्शन बढ़ता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस लोग करने लगते हैं, इसलिए ये उचित नहीं है। और थर्ड पॉइंट कहता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स लीड्स टू इनइक्वालिटीज अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स। जो इसके शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी के, उन उनमें इनइक्वालिटीज पैदा करता है कि ऐसे शेयर होल्डर ऐसे चाहे वो शेयर होल्डर सच है, जैसे कस्टमर हुए, सप्लायर हुए, पब्लिक शेयर होल्डर हुए, इसलिए इनइक्वालिटीज पैदा करता है। वैसे व्यक्ति जो बड़ा शेयर होल्डर्स होते हैं, वहाँ पॉसिबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर पाएँ। दूसरी तरफ जो है कि वो शेयर होल्डर्स जो कम हैं, एकदम छोटे-मोटे हैं, तो उनके ज़्यादा नहीं अर्न कर पाएँगे। तो इस तरीके से ये उस सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ पैदा कर देता है। तो इसलिए ये इनके अगेंस्ट है। अब दूसरा जो सेकंड वे है, ऑब्जेक्टिव है, वो है वेल्थ मैक्सिमाइज़ेशन। So wealth maximization is one of the modern approach which involves latest innovation and improvements in the field of the business concern। जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो एक मॉडर्न अप्रोच है, वह एक आधुनिक अप्रोच है, जो कि लेटेस्ट जो भी इनोवेशन है, इम्प्रूवमेंट है बिजनेस कंसर्न के क्षेत्र में, उसको समाहित करता है। दिस टर्म वेल्थ मीन्स शेयर होल्डर्स वेल्थ और वेल्थ ऑफ पर्सन्स, तो दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस कंसर्न। यानी ये जो शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, जिनके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है, ये उस पार्टिकुलर वेंचर के रियल ओनर हैं, रियल शेयर होल्डर हैं। तो यदि उसकी स्थिति सुधरती है तो इनकी स्थिति भी सुधरेगी। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज आल्सो नोन एज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन और नेट प्रेजेंट वर्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा कि ये भी नाम से जाना जाता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। So this objective is universally accepted in the field of business।
और ये जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो उद्देश्य है वो बिजनेस के फील्ड में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो अब फेवरेबल आर्गुमेंट्स फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है? तो इसमें लोग कहते हैं कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज सुपीरियर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, because the main aim of the business concern under this concept is to improve the value or wealth of shareholders। जो wealth maximization है वो superior है टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सुपीरियर है, क्योंकि इसका जो मेन उद्देश्य है इस बिजनेस का कंसर्न का वो इम्प्रूव द वैल्यू ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर्स हैं, जो रियल ओनर्स हैं, उनकी संपत्ति, उनकी स्थिति सुधरती है, इसलिए ये बेटर है। सेकेंड पॉइंट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसिडर्स द कंपैरिजन ऑफ वैल्यू टू कॉस्ट एसोसिएटेड विद द बिजनेस कंसर्न। द टोटल वैल्यू डिटेक्टेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, इट प्रोवाइड्स एक्सट्रैक्ट वैल्यू ऑफ द बिजनेस कंसर्न। यानी ये कहता है कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो कॉस्ट एसोसिएटेड कॉस्ट जो उससे है बिजनेस से, उसका एनालिसिस करता है, उसका कंपैरिजन करता है, देन वो डिटेक्ट करता है कि जो टोटल कॉस्ट है बिजनेस ऑपरेशन का वो क्या है और वैल्यू कितनी जनरेट हुई है ना। और इससे एग्जैक्ट फिगर पता चलता है कि वेयर वी एग्जिस्ट, कि जो वैल्यू रियल में एक्चुअली हो रहा है कि नहीं, यानी जो हमने इन्वेस्ट किया है उतना ही मिला कि उससे ज़्यादा मिला कि नहीं। तो इस तरीके से इन्होंने कॉस्ट एनालिसिस एसोसिएटेड कॉस्ट का एनालिसिस करके उसका पता लगाते हैं। अब जो है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर्स बोथ टाइम एंड रिस्क ऑफ बिजनेस कंसर्न। ये जो है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, रिस्क क्या है इस बिजनेस में, इसका भी एनालिसिस इसमें किया जाता है। और दूसरी चीज़ जो है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रोवाइड्स इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ये जो भी संसाधन है उसका कुशल एलोकेशन होता है, कुशल आवंटन अ, होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कुशल आवंटन को बताता है। एंड फाइनली इट इंश्योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। और ये जो समाज है उसके आर्थिक रुचि को भी बताता है। तो बट देयर आर सम अनफेवरेबल आर्गुमेंट्स फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लेकिन इसके अगेंस्ट भी कुछ आर्गुमेंट्स है। उसमें पहला है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लीड्स टू प्रिस्क्रिप्टिव आइडिया ऑफ बिजनेस कंसर्न, बट इट मे नॉट बी सुटेबल टू प्रेजेंट डे बिजनेस एक्टिविटीज। ये ठीक है। ये कहता है कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, धन अधिकतमीकरण का जो सिद्धांत है, वह व्यवसाय के निर्धारित विचारों को बढ़ावा देता है। इसमें जो उनकी जो इनोवेशन से रिलेटेड विचार है, जो नए-नए विचार, उनको बढ़ावा देता है। परंतु ऐसा नहीं कह सकते कि धन बढ़ने से आपका विचार बढ़ेगा। ना, तो ये चीज़ें तो आज के बिज़नेस एनवायरनमेंट में ये सूटेबल नहीं है। दूसरी तरफ जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज नथिंग बट द डायरेक्ट नेम ऑफ इनडायरेक्ट नेम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ही अप्रत्यक्ष नाम है। यानी ये भी कुछ नहीं है। ये कह सकते हैं कि पुरानी बोतल नई बोतल में पुरानी शराब ही होगी ना। तो ये सारी चीज। अब थर्ड पॉइंट कहता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्रिएट्स ऑनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोवर्सी। जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो स्वामित्व प्रबंधन से संबंधित विवाद पैदा करता है, यानी स्वामित्व प्रबंधन का विवाद पैदा कर देता है। तो ये इसके अगेंस्ट में है। द फोर्थ पॉइंट है मैनेजमेंट अलोन एंजॉय द सर्टेन बेनिफिट्स। जो मैनेजमेंट है वो खुद अकेले ही जो बेनिफिट्स हैं सर्टेन कुछ उसको एंजॉय करता है। द अल्टीमेट एम ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और यदि अल्टीमेट इसका हम उद्देश्य देखें तो इस प्रिंसिपल का तो इसमें यही है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना। एंड सिक्स पॉइंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैन बी एक्टिवेटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिटेबल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न। अर्थात जो व्यावसायिक फर्म का लाभदायक स्थिति की मदद से ही इसको एक्टिवेट किया जा सकता है। एंड किसको?
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को। तो यही बताता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ओनली एक्टिवेटेड ओनली विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिटेबल पोजीशन, बिजनेस कंसर्न का जो प्रॉफिटेबल पोजीशन है उससे ही इसको एक्टिवेट किया जा सकता है। इन ब्रीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसको शॉर्ट में आप परीक्षा में लिखना चाहें उतना थोड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको शॉर्ट में भी आपको यहाँ कर रखा हूँ। तो आप इसको ही आप समझ लीजिए, इजी रहेगा। फर्स्ट है कि द फाइनेंस एक सेकंड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज जनरली कंसर्न्ड विद प्रोक्यूरमेंट, अलोकेशन, कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ कंसर्न। ये किसी भी फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज का खरीदना, उसका अलोकेशन करना, उसके ऊपर कंट्रोल रखना से संबंधित है। तो फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर रेगुलर एंड एडेक्वेट सप्लाई ऑफ फंड टू द कंसर्न, यानी जो कंसर्न है उसके लिए लगातार और पर्याप्त जो है फंड का सप्लाई करना उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य ये है कि टू इंश्योर एडेक्वेट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स which will depends upon earning capacity, market price of the share and expectation of shareholders। ओके, तो ये सुनिश्चित करता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पर्याप्त जो है कि रिटर्न उनके शेयर पे मिलता रहे, उनके इन्वेस्टेड मनी पर मिलता रहे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कंपनी की मार्केट पोजीशन क्या है, मार्केट में उसका शेयर क्या है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है, शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन, तो ये सारी चीज़ों पर। थर्ड पॉइंट है टू इंश्योर ऑप्टिमम फंड्स यूटिलाइजेशन, यानी वंस फंड्स आर प्रोक्यूर्ड दिस शुड बी यूटिलाइज्ड इन मैक्सिमम पॉसिबल वे एट लीस्ट कॉस्ट। यानी एक बार जब फंड का व्यवस्था हो गया तो इसका सुनिश्चित करना होता है कि इसको किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसका किया जाए। ठीक, तो वंस द फंड्स आर प्रोक्यूर्ड, एक बार जब फंड की व्यवस्था हो गई तो उसके बाद इसको किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए पॉसिबल, ताकि कम से कम कॉस्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट टू इंश्योर सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी फंड शुड बी इन्वेस्टेड इन सेफ वेंचर सो दैट अडेक्वेट रेट ऑफ रिटर्न कैन बी अचीव। यानी ये कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें सेफ वेंचर में, जो बिजनेस कंसर्न है सेफ, वहाँ पे ही हमको इन्वेस्ट करना है ताकि जो है एडेक्वेट रेट ऑफ रिटर्न हमें प्राप्त हो सके। ऐसा जगह नहीं कि करें कि वो दिवालिया हो जाए, वो डूब ही जाए पैसा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एंड फिफ्थ पॉइंट, टू प्लान ए साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर एंड देयर शुड बी साउंड एंड फेयर कंपोजिशन ऑफ कैपिटल सो दैट बैलेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी कैपिटल। यानी कि इसके बाद हमें एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना होगा। जो साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर होगा और फेयर कंपोजिशन ये होगा कि डेब्ट और इक्विटी किन किन स्रोतों से कितना पैसा लेना है और किस किस सेक्टर में कितना लगाना है, ये इसका उद्देश्य होता है। अब आते हैं लास्ट, दैट इज द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट फंक्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन है वो एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी जो कैपिटल की ज़रूरत होता है उसका आकलन करना। तो इसका आकलन करना क्या है कि कितनी कैपिटल हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, कितना शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, क्या कॉस्ट होगा उसका, न क्या पॉलिसीज है, वो ये सारी चीज़ इसमें डिसाइड होता है। यानी इसमें मतलब ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नहीं, यहाँ पर कहिए कि इनका जो है कि फ्यूचर प्रोग्राम और पॉलिसीज क्या है उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेशन करते हैं कि क्या चाहिए। तो ए फाइनेंस मैनेजर हैज टू मेक एस्टिमेशन अबाउट कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, यानी जो मैनेजर है, जो वित्तीय प्रबंधक है, उसका काम होता है कि उस पार्टिकुलर कंपनी के लिए कितनी पैसे की ज़रूरत है, कितना फाइनेंस का ज़रूरत है, उसका आकलन करना। एंड दिस विल डिपेंड्स अपॉन एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स एंड प्रॉफिट्स एंड फ्यूचर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ कंसर्न। और ये डिपेंड करेगा कि जो बिजनेस है, जो फर्म है, उसका फ्यूचर में पॉलिसीज़ क्या है, प्रोग्राम क्या है, क्या वो करना चाहता है, क्या प्लान है उस पे। तो एस्टिमेशन हैव टू बी मेड इन एडेक्वेट मैनर व्हिच इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एंटरप्राइज। तो इसलिए जो है कि जो एस्टिमेशन है वो इस ढंग से करना चाहिए, पर्याप्त तरीके से ऐसा करना चाहिए ताकि जो अर्निंग कैपेसिटी है एंटरप्राइज का वो बढ़ सके।
अब determination of capital composition. So once estimation have been made, the capital and structure have to be decided. जब composition बन जाता है कि क्या करना है कि उसके बाद हम चलते हैं कि हमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करनी होती है कि कितना हमें लॉन्ग टर्म, कितना शॉर्ट टर्म डेब्ट और इक्विटी लेना होता है, ये एनालिसिस करते हैं। तो दिस विल डिपेंड्स अपॉन प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी capital a company is possessing and additional fund which have to be raised from outside the party। तो जब ये डिसाइड हो जाता है तो उसको ये डिपेंड करता है कि जो प्रोपोर्शन है इक्विटी कैपिटल का ये कंपनी का, वो करता है कि एडिशनल फंड है, वो फंड कैसे रेज्ड होगा आउटसाइड से, कितना हमें लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेना है, किस किस स्रोत से लेना है। देन थर्ड पॉइंट इज द फंक्शन इज द चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब जो कौन सा हम स्रोत को चॉइस करते हैं, फॉर एडिशनल फंड्स टू बी प्रोक्यूर्ड ए कंपनी हैज टू मेनी चॉइसेस लाइक इशूज ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, लोन टू बी टेकन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट टू बी ड्रॉन लाइक इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। तो इन जगह से कि हमें चूज़ करना है कि हमें शेयर इश्यू करके पैसा लेना है, डिबेंचर इश्यू करना है, कि लोन लेना है बैंक से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या पब्लिक डिपॉज़िट को हमें ड्रॉन करना है। तो ये सारी चीज़ ये डिसाइड करता है मैनेजर कि और ये डिसाइड होता है, फैक्टर डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच सोर्स एंड पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग। अब उसका मेरिट क्या है, कौन हमारे लिए बेनिफिशियल है, कितना पीरियड के लिए देगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन सारी चीज़ों के आधार पर फिर मैनेजर डिसाइड करता है कि फ्रॉम वेयर आई हैव टू टेक द फाइनेंस फॉर आवर कंपनी विच इज विच वुड बी बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है investment of funds. So the finance manager has to decide to allocate funds into profitable venture so that there is safety on investment and regular returns is possible। तो एक बार जो है कि फंड आ गया तो अब जो है कि फाइनेंशियल मैनेजर जो वित्तीय प्रबंधक है उसको डिसाइड करना होता है कि वो फंड को ऐसे जगह ऐसे बिजनेस में लगाए जो कि प्रॉफिटेबल हो और सेफ्टी उसमें हो, और हमें जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको रेगुलर जो है कि कुछ संभावित रिटर्न मिलता रहे। ना यानी सुरक्षित वेंचर में इन्वेस्ट करना। देन डिस्पोज़ल ऑफ सरप्लस, जो अधिशेष है उसका निपटान। सो नेट प्रॉफिट डिसीजन हैव टू बी मेड बाय फाइनेंस मैनेजर। दिस कैन बी डन इन टू वेज, यानी जो नेट प्रॉफिट का डिसीजन है वो फाइनेंस मैनेजर के द्वारा किया जाता है, और इसका दो तरीका है। पहला ये है डिविडेंड डिक्लेरेशन करके, यानी लाभांश का घोषणा करके। दूसरा रिटेन्ड प्रॉफिट्स है, यानी जो परिधारित लाभ है, जो बरकरार रखा हुआ लाभ है उससे। तो कहता है इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाई द रेट ऑफ डिविडेंड्स एंड अदर बेनिफिट्स लाइक बोनस। तो ये बताता है कि जो कितना हमें रेट ऑफ डिविडेंड्स किस दर से लाभ हो रहा है, और वो बोनस क्या है, अदर प्रॉफिट क्या है। दूसरी जो है रिटेन्ड प्रॉफिट्स, ये इसमें जो है कि जो वैल्यू है टू बी डिसाइडेड व्हिच विल डिपेंड्स अपॉन एक्सपेंशंस, इनोवेशन, डाइवर्सिफिकेशन प्लान ऑफ द कंपनी। यानी इसमें जो रिटेन प्रॉफिट है उसमें कंपनी के विस्तार, उसका इनोवेशन यानी नवाचार और विविधीकरण की योजना पर निर्भर करेगा कि अ, हमें कितनी रखनी है रिटेन प्रॉफिट को, कितना पार्ट्स, ताकि इसका एक्सपेंशन, इनोवेशन, डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। अ, अब जो है ये मैनेजमेंट का फंक्शन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फिफ्थ। सिक्स फंक्शन है मैनेजमेंट ऑफ कैश। तो फाइनेंस मैनेजर हैज टू मेक डिसीजन अबाउट कैश मैनेजमेंट। Cash is required for many purposes like payment of wages and salaries, payment of electricity and water bills, payment of creditors, meeting current liabilities, maintenance of enough stock, purchase of raw materials, etc. तो मैनेजमेंट ऑफ कैश में जो मैनेजर का ये फंक्शन होता है कि वो डिसीजन लेता है और डिसाइड करता है कि भाई हमें कितनी जो है कि मात्रा में कैश रखना है,
ताकि मज़दूरी का पेमेंट हो सके, लेबर का, सैलरी दिया जा सके, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, जो वो क्रेडिटर्स हैं और जो करंट लायबिलिटी है डे टू डे एक्सपेंसेस उनको फिर हमारा इनफ स्टॉक का मेंटेनेंस करना है, रॉ मटेरियल परचेज़ करना है स्टॉक में, इन सारी चीज़ों के लिए हमें कितनी कैश की ज़रूरत होती है, तो ये भी डिसाइड करता है मैनेजर। देन final that is financial control. So the finance manager has to not only plan, procure and utilize the funds, but he also has to exercise control over the finance. This can be done through many techniques like ratio analysis, financial forecasting, कॉस्ट एंड प्रॉफिट कंट्रोल एटसेट्रा। यानी जो फाइनेंशियल कंट्रोल है, जो फाइनेंस मैनेजर है, जो वित्तीय प्रबंधक है, वित्त का प्रबंधन करने वाला मैनेजर जो है, वो का सिर्फ यही काम नहीं है कि प्लान कर लिए, प्रोक्योर और यूटिलाइज कर दिए फंड का, मेरा काम खत्म हुआ, नहीं। बल्कि उसको उस पर सही कंट्रोल रखना भी फाइनेंस का रहे, ताकि उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जा सके एंड दिस कैन बी डन थ्रू मेनी टेक्निक्स। और इसके लिए जो टेक्निक्स है वो है रेशियो एनालिसिस है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड कॉस्ट बेस्ड बेनिफिट कंट्रोल है, जो कि हम लोग 5th सेमेस्टर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में पढ़े थे। So thus, during this session, we have discussed about the meaning, definitions, objectives, and functions of financial management, and learn that the financial management or the management of finance is essential to achieve the desired goals and objectives of an enterprise economically. जो इन द इसी के साथ ये लेक्चर खत्म हुआ। इन द नेक्स्ट लेक्चर कैपिटल जनरेशन एंड मैनेजमेंट टेक्निक वुड बी डिस्कस। ओके, तो इस लेक्चर के आधार पर एक क्वेश्चंस फॉर सेल्फ असेसमेंट है, तो आप सोल्व कीजिए इसको और अपनी लर्निंग को चेक कीजिए, और साथ ही में कुछ वर्ड आपको ना समझ में आए तो इसके लिए ग्लॉसरी दिया गया है। बाकी आप नोट्स तो ecoramunwordpress.com से आप डाउनलोड करिए लेते होंगे, ये जो ब्लॉग है यहाँ पे आप जाके नोट्स को इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। ओके, thank you. Thank you for your patience.